Good afternoon to everyone. This is the sum we will do now. Vinayaka's trial balance as on 31st March 2014 is as follows. Particulars, debit, credit. So we have opening stock of raw material, WIP, finished goods. Now raw material, manufacturing account, WIP where production takes place, where production, WIP matlab kya, incomplete production, so that will also come in the manufacturing account. Finished goods ka opening stock, finished goods ka everything, finished goods are goods that we sell in the market, so that all will come in the trading account. Purchases, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि हम मटेरियल परचेज करके उसमें काम करके फिर सेल करते, प्रोडक्शन करके सेल करते. बिल्डिंग will come in the balance sheet asset side. Then we have plant and machinery, that is also asset. Furniture asset, trademark asset. Trademark is a intangible asset. Okay, so then we have wages मतलब factories related, manufacturing, factory taxes, manufacturing, motive power, manufacturing, factory insurance, manufacturing, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज इनवर्ड, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स, ये भी मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएनएल, बैंक चार्जेस पीएनएल, ट्रैवलिंग प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल, डिस्काउंट पीएनएल, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस करना है, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल, sales, trading account, capital, balance sheet, liability side, creditor, liability, debtor, asset, discount, P&L, profit and loss, miscellaneous expense, profit and loss, bills payable. Bills payable किधर आएगा? Bills payable किधर आएगा? Any idea? Where will bills payable come? Bills payable will come in the balance sheet liability side. Correct, Reshma, Sakina. Bills receivable will come in the asset side. Corporation bank, matlab bank balance, it will come in the asset. Cash on hand also will come in the asset. Now, closing stock, we have raw material, manufacturing account, WIP, manufacturing account, finished goods, trading account. फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड है तो फैक्ट्री टैक्सेस को हाईलाइट करो, इट हैज ए एडजस्टमेंट. प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीसिएशन, फर्नीचर में भी डेप्रीसिएशन है, दोनों को हाईलाइट करो, इट हैज ए एडजस्टमेंट. ट्रेडमार्क ऑल्सो हैज ए डेप्रीसिएशन, इट ऑल्सो हैज एडजस्टमेंट. फिर बिल्डिंग को भी हाईलाइट करो, बिल्डिंग इज ऑल्सो हैविंग ए एडजस्टमेंट. So only this much and the question is done. So what we have to prepare manufacturing account. So manufacturing account for year ended 31st March 2014. तो इसमें what all will come? Particulars, rupees, particulars, rupees. So जरा अमाउंट का एडजस्ट करो. So we got it. We got the manufacturing account. आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग पीएनएल प्रिपेयर करना है. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस account for year ended 31st March 2014. Either we will write particulars, rupees, will write
particulars, rupees, rupees. So this is also done. इसमें P&L अकाउंट भी साथ में बनाएंगे एंड फाइनली we will be preparing our balance sheet as on 31/3/2014. बैलेंस शीट में क्या रहेगा? लाइबिलिटीज रुपीस, असेट्स चलो, all the accounts are prepared. Now we can start the posting. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज देयर, सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे. मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग वी रिक्वायर रॉ मटेरियल. तो इसमें हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में रॉ मटेरियल. So how much is opening stock of raw material? Just have a look. 2,50,000 है. So we'll write 2,50,000. इसको एक थोड़ा नीचे लेंगे ना, तो इसके नीचे एक और चीज लिखेंगे इसके ऊपर. इसको बोलते टू WIP ओपनिंग स्टॉक. WIP का ओपनिंग स्टॉक. बिकॉज ये ऊपर लिख लेते हैं ना, तो वी कैन नॉट लाइक देन वो एक ही जगह में रहता है. 80,000. व्हाट इज द अमाउंट? इट इज 80,000. So opening stock of WIP 80,000. Directly we will write in the last column. फिर what is left out? देखो, ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल लिखा, WIP लिखा, दोनों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है. तो व्हाट इज लेफ्ट आउट? फिनिश्ड गुड्स 2,20,000. फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में we will write finished goods and the amount is 2,20,000. इसके बाद any confusion till here? इसके बाद what is given? Purchases is given 2,15,000. सिर्फ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट टू अस. तो इसलिए हम क्या करते हैं और परचेस करते हैं. परचेस कितने में करेंगे? 2,15,000 गिवन इन द क्वेश्चन. परचेस के बाद वी हैव बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, ऑल आर असेट्स. सो वी विल गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड. सब में एडजस्टमेंट है. सो बिल्डिंग, कितना अमाउंट है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का अमाउंट है 1,50,000. सो विल राइट 1,50,000. बिल्डिंग के बाद एक लाइन छोड़ के, which is the other asset we have, plant and machinery 3,60,000. So we'll write plant and machinery amount है 3,60,000. So लिखेंगे 3,60,000. इसमें भी एक लाइन छोड़ के we have furniture 40,000. So एक लाइन छोड़ दिया और लिखा फर्नीचर 40,000. फर्नीचर, इसमें भी एडजस्टमेंट है. सो विल राइट 40,000. फिर देन आफ्टर फर्नीचर व्हाट इज दैट? ट्रेडमार्क 30,000. सो वी विल लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ के वी विल राइट ट्रेडमार्क 30,000. सो वी हैव रिटन ऑल ऑफ देम. इसके बाद वी हैव वेजेस 83,000. वेजेस कहाँ पे आते हैं? वेजेस कम्स इन द फैक्ट्री. तो इधर लिखेंगे टू वेजेस. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो विल राइट वेजेस 83,000 गिवन इन द क्वेश्चन. वेजेस 83,000. फैक्ट्री टैक्सेस 4,000. दैट इज द एडजस्टमेंट.
Factory taxes, there is an adjustment. Factory taxes 4,000. So we will go to factory taxes 4,000 और एक लाइन छोड़ देंगे, adjustment is there. Then we have motive power and factory insurance. तो एक लाइन ऊपर टू, किधर भी लिख सकते हो, हाँ, यू कैन राइट एनीवेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मोटिव पावर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोटिव पावर? 9,000. सो आउटर कॉलम में बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 9,000. मोटिव पावर के बाद व्हाट इज है? फैक्ट्री इंश्योरेंस 5,000. सो एक लाइन नीचे, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस 5,000. फैक्ट्री इंश्योरेंस 5,000. इसके बाद व्हाट इज है? फैक्ट्री इंश्योरेंस का सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 11,000. पीएनएल अकाउंट में जाना पड़ेगा. टू सैलरीज 15,000. सैलरीज का अमाउंट बराबर है, नहीं, इट इज 11,000. आई रोट 15,000. सो 11,000. इसके बाद व्हाट इज है? ऑफिस रेंट 10,500. तो इधर लिखेंगे टू ऑफिस रेंट, एडजस्टमेंट नहीं है, 10,500. देन व्हाट इज देयर? ऑफ कैरेज इनवर्ड 2,500. तो परचेज के नीचे आई विल ऐड कैरेज inward. How much is the amount? 2,500. इसके बाद क्या है? अदर साइड प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,200. सो प्रिंटिंग स्टेशनरी भी पीएनएल अकाउंट में आता है. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,200. इसके बाद क्या है? बैंक चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. So I will write to all the two bank charges and traveling expenses. To bank charges, to traveling expenses. दोनों का अमाउंट क्या है? बैंक चार्जेस 2,500 and 10,000 is traveling expense. इसके बाद व्हाट इज है? डिस्काउंट 3,300. डिस्काउंट है 3,300. One minute. यहाँ पे गलत जगह पे लिख दिया मैंने. इसके बाद क्या है? डिस्काउंट 3,300. So I will write here. डिस्काउंट किधर आएगा? पीएनएल अकाउंट में. टू
डिस्काउंट 3,300। फिर क्या है, डिस्काउंट के बाद सेल्स रिटर्न 11,000, तो यहाँ पे बाई सेल्स से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। हाउ मच इज द अमाउंट? 11,000। 11,000 सेल्स रिटर्न माइनस किया। एडवर्टाइजमेंट 5,000। एडवर्टाइजमेंट किधर आते हैं? P&L अकाउंट में। तो टू एडवर्टाइजमेंट, हाउ मच इज द अमाउंट? 5,500। 5,500 इज एडवर्टाइजमेंट, लिख लिया। सेल्स 7,80,000, तो इधर लिखेंगे 7,80,000। तो 7,80,000 माइनस 11,000 कितना होता है? 7,80,000 minus 11,000, how much is it coming? 7,69,000, correct, 7,69,000. What else do we have? और क्या है हमारे पास सेल्स लिखने के बाद क्वेश्चन में? कैपिटल है 8,50,000। कैपिटल तो लाइबिलिटी में आता है, कैपिटल, और इनर कॉलम में 8,50,000। इसके बाद व्हाट इज दैट? क्रेडिटर्स 52,000। तो क्रेडिटर्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो थोड़ा नीचे आई विल राइट, बिकॉज नेट प्रॉफिट कुछ लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स 52,000। फिर डेटर्स भी रहेगा, डेटर्स 82,500। सो गो टू द बैलेंस शीट। डेटर्स में एडजस्टमेंट नहीं है ये सम में, सो डेटर्स आउटर कॉलम में 82,500। इसके बाद व्हाट वी हैव? डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इधर लिखना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी वेयर है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख लिया सेल्स। ओ नो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख लिया गलती से सेल्स। इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट। सेल्स हमेशा किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हाउ मच इज द डिस्काउंट रिसीव? 2,500। डिस्काउंट रिसीव कितना मिला? 2,500। मिसलेनियस एक्सपेंस 5,500। तो P&L अकाउंट में लिखेंगे टू miscellaneous expense 5,500, and then bills payable 35,000, bills payable 34,000। तो क्रेडिटर्स के नीचे we will write bills payable 34,000। bills payable will come in the liability side, then we have bills receivable 16,000, कोई adjustment नहीं है, तो we'll write bills receivable 16,000, 16,000। then we have बैंक, कॉरपोरेशन बैंक 98,000, तो यहीं पे लिखेंगे बैंक बैलेंस है ये, कॉरपोरेशन बैंक 98,000, 98,000। इसके बाद व्हाट वी हैव? लास्ट वन, कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड भी असेट है, सो कैश ऑन हैंड 9,000। all the posting is done. Now what we will do? Closing stock
85,000 रॉ मटेरियल, तो ये दोनों को ऐड किया, इसके नीचे लेस क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में raw material. How much is the amount we have got? 85,000. So यहाँ पे how much is the amount? 85,000 ब्रैकेट में लिखा, तो क्या आंसर आ रहा है? आउटर कॉलम में क्या आंसर आ रहा है? 2,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 2,500 माइनस 85,000. क्या आंसर आ रहा है? 2,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 2,500 माइनस 85,000. आर यू गेटिंग? 3,82,500 करेक्ट आंसर. नाउ इसके बाद WIP का वर्क क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है. WIP का बट सेल्स तो इधर नहीं आता, इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक WIP, आउटर कॉलम में 30,000. फिर क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में फिनिश्ड गुड्स. क्या अमाउंट है? इट इज, व्हाट इज द अमाउंट? 2 lakh. What is the amount? Let me check once again. 2,05,000. 2,05,000 ये भी हो गया. अभी इसका दूसरा इफेक्ट देना है बैलेंस शीट में. क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP and finished goods. What is the amount? 85,000, 30,000, 2,05,000. ये तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट अवर टोटल 3,20,000. 85,000, 30,000, 2,05,000 is equal to 3,20,000. तो इसके बाद विच इज द नेक्स्ट एडजस्टमेंट? फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड 2,000. प्रीपेड है तो लेस करेंगे, नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पे किया है. आउटस्टैंडिंग वी ऐड, प्रीपेड वी लेस. सो लेस करना है कितना? 2,000. सो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 2,000. और जो प्रीपेड टैक्स फैक्ट्री टैक्सेस है वो किधर आएगा? करेक्ट, असेट. प्रीपेड फैक्ट्री टैक्सेस 2,000. इसके बाद विच इज द नेक्स्ट एंट्री? डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%. फर्नीचर पे 10%, सो लेस depreciation 10% will come to 4,000. So आउटर कॉलम में हो जाएगा 36,000. फर्नीचर किधर यूज होता है? ऑफिस में, तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. हाउ मच इट इज? 4,000. Then we have, after furniture, we have plant and machinery 15%. So less depreciation, 15% of 3,60,000. 3,60,000 का 15% is 54,000. 54,000
कितना बचेगा? 3,06,000, 3,06,000। एंड प्लांट एंड मशीनरी तो फैक्ट्री में रहते हैं। प्लांट एंड मशीनरी किधर रहता है? प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में रहता है, तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट कितना? 54,000। इसके बाद what we have, let us see what else we have. Trademark building, trademark 20%, so less depreciation 20% is 6,000 हो जाएगा। तो ये आउटर कॉलम में हो जाएगा 24,000। तो ट्रेडमार्क इज डिजाइन तो ऑफिस में बैठ के बनाएंगे, तो ट्रेडमार्क का जो डेप्रिसिएशन है ऑन ट्रेडमार्क विल कम इन द P&L अकाउंट, बिकॉज ट्रेडमार्क इज डिजाइन से ऑफिस में बैठ के बनाएंगे, तो उसका कुछ भी अमोर्टाइजेशन रहेगा तो वो विच इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन राइटिंग ऑफ, तो वो तो P&L अकाउंट में आएगा। इसके बाद वी हैव बिल्डिंग 5%, सो बिल्डिंग पे भी डेप्रीसिएशन है, लेस डेप्रीसिएशन 5% कितना हो जाएगा? 7,500, 5% ऑफ 1,50,000। अब बिल्डिंग भी, बिकॉज फैक्ट्री बिल्डिंग कुछ नहीं बोला, तो हम अज्यूम करेंगे इट इज ऑफिस, यूज फॉर ऑफिस, इट इज यूज फॉर ऑफिस 7,500। मतलब हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब क्या करेंगे? अभी इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बंद करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बंद करेंगे। डेबिट साइड का टोटल कितना आता है? लेट अस सी डेबिट साइड का टोटल कितना आता है। Is it, how much is coming debit side total? Is it coming 6,15,500? Is it coming 6,15,500? Please check. इसको बोलेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, cost of production. See, you're not getting this amount, 80,000 यही आ रहा है ना? यस, करेक्ट आंसर। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 5,85,500। एवरीवन आर गेटिंग दिस आंसर, वेरी गुड। नाउ ये बाई हो जाएगा, बाई हो जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वहां से इधर आया है, तो ब्रैकेट में वी कैन राइट दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो कितना अमाउंट है? क्या अमाउंट है? 585,500। तो इसके बाद अभी देखो ग्रॉस प्रॉफिट है क्या ग्रॉस लॉस? इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जस्ट चेक ग्रॉस प्रॉफिट है क्या ग्रॉस लॉस है? कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस? 9,74,000, करेक्ट, 9,74,000। और हमें प्रॉफिट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1,68,500। तो द ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में बोलेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन, बाई जीपी bought down. How much is this amount? 168, 168
500, 168,500, तो कितना आ रहा है? 1,71,000, 1,71,000. Now to net profit carried down. What is the net profit coming? Net profit is coming 1 lakh. करेक्ट आंसर 1 लाख. सो ये नेट प्रॉफिट को इधर ऐड करेंगे कैपिटल में. नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे. नेट प्रॉफिट बॉट डाउन. नेट प्रॉफिट बॉट डाउन 1 लाख. तो ये हो जाएगा 9,50,000. And what is the total of tally amount coming? Total of the balance sheet is coming 10,36,000. It is coming 10,36,000. Both the sides 10,36,000. Both the sides, and our answer is tallied.